So hello everyone, we'll study about antidotes. So for the insecticide poisoning, there are different antidotes for different insecticide. So for the ISI guideline, IS 4015 that is deals with first aid, symptoms and the diagnosis of the patient affected by the insecticide. Okay, so IS 4015 40 15. So, if a poison is ingested, magnesium citrate or sulfate or castor oil is used for the cleaning the gut. So, अगर poison ingest कर हम अगर poison ingest करते हैं तो हमारा gut cleaning के लिए क्या क्या यूज होता है? मैग्नीशियम साइट्रेट और सल्फेट और castor oil. Okay. So universal antidote is 2 part of activated charcoal, 1 part of magnesium oxide, and then 1 part of tannic acid, and plus half glass of warm water. Okay, so 2:1:1 ratio. Universal antidote. So for the arsenic and mercury poisoning, the antidote is dimer captopropanol, that is the BAL. So antidote for BHC poisoning, that is the barbiturates. Then organochlorine, that is the diazepam and epinephrine. Okay. Then calcium gluconate is the antidote for chlorinated insecticide, ethylene dichloride, and carbon tetrachloride is the CCl4 and the mercury compound. So mercury compound, CCl4, ethylene dichloride and chlorinated insecticide, all antidote for all the insecticide, the antidote is calcium gluconate. Okay. Then in aldrin or dialdrin poisoning, the patient after recovery may develop full-blown symptom after a month of initial poisoning. Okay. So in second slide for the cyanide poisoning, the antidote is methyl nitrate, and then paraestheria, that is the prickling, is caused by the synthetic pyrrole. Okay. Then phenobarbital is the antidote for synthetic pyrrole and chlorinated hydrocarbon. Then organophosphate, we know about organophosphate, that is so muscardine and then nicotinic effect. Okay. Then the antidote is atropine. Okay, atropine and the 2-palm. Okay. Then for the carbamate, but carbamate only shows muscardine. Okay, it only shows muscardine. Okay. But organophosphate both muscardine and then nicotinic effect also. Okay. So for the organophosphate, atropine sulfate and 2-palm is also used as an antidote. And for the carbamate, muscardine symptom, it is the atropine, only atropine sulfate is used, not 2-palm. Okay. So blue babies or shedding of tears, that is the porphyrinuria occurs due to the toxicity of the organophosphate compound. So for the organophosphate toxicity, blue babies syndrome, that is the, or shedding of red tear, that is porphyrinuria occurs. Okay. Then for the nicotinic effect, that is nicotine toxicity, antidote is curare and 2-palm. Okay. Then antidote for penvavalate deltamethrin poisoning, the diazepam. Okay. So for vitamin K1 K2, the anticoagulant poison is warfarin. So normally जब मैं भी पढ़ती हूँ ना तो मुझे वारफरिन याद रहता है. ओके, विटामिन K1 एंड K2 करके वो याद रहती है. ठीक है. ऑर्गेनोफॉस्फेट भी याद रहती है, कार्बामेट भी याद रहती है. ठीक है. निकोटिनिक याद रखेंगे हम कैसे ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट में भी 2-palm आएगा. ठीक है. निकोटिन क्योंकि इसमें मस्कार्डाइन इफेक्ट एंड निकोटिनिक इफेक्ट सर्व करता है. ठीक है. सो इसमें मस्कार्डाइन इफेक्ट सर्व करता है तो मस्कार्डिन के लिए एक्टोपाइन सल्फेट, एंड इसमें करामेट में निकोटिनिक इफेक्ट शो नहीं करता, मतलब 2-palm नहीं चाहिए. सो इसमें निकोटिन चाहिए, मतलब 2-palm चाहिए. ठीक है. तो निकोटिन में एंड 2-palm एंड एक्स्ट्रा क्या है, क्यूरेर. ठीक है. क्यूरेर क्यूरेर
देन हम कैसे याद रखेंगे क्या किसको ना फेनवालेरेट एंड देन डेल्टा मेथ्रिन. ओके, सो ये डेल्टा मेथ्रिन डी से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो डायजापाम एंड डेल्टा मेथ्रिन. ठीक है, एफडी करेंगे डायजापाम का. ठीक है, एफडी करेंगे हम किसका ना डायजापाम का. फेनवालेरेट एंड डेल्टा मेथ्रिन एफडी करेंगे डायजापाम. ठीक है, फिर हम सिंथेटिक पायराथ्रोइड, ये भी याद रहता है नॉर्मली, फेनबारबिटॉल किसके लिए ना सिंथेटिक पायराथ्रोइड एंड क्लोरेटेड हाइड्रोकार्बन. ठीक है, फॉर सियानाइड एक ही है. ठीक है, मिथाइलिन सीएम. ठीक है, हम चीफ मिनिस्टर को याद करेंगे सियानाइड के लिए मिथाइल नाइट्रेट. ठीक है, चीफ मिनिस्टर सियानाइड के लिए मिथाइल नाइट्रेट. एंड एफडी करेंगे किसके लिए ना डायजापाम के लिए. डायजापाम के लिए एफडी करेंगे ना फेनवालेरेट एंड डेल्टा मेथ्रिन एफडी करेंगे किसके लिए डायजापाम के लिए. सियानाइड करेंगे मिथाइल नाइट्रेट के लिए सियानाइड सीएम, तो मिथाइल नाइट्रेट. ओके, तो सिंथेटिक पायराथ्रोइड फेनोबार्बिटॉल हो गया. फिर आ गया क्लोरेटेड इंसेक्टिसाइड इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड. जो बहुत सारा कंपाउंड याद आ रहा है ना, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट. सबको आजकल कैल्शियम ही कमी है, तो ये ऐसे याद कर लेंगे कि कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट. बहुत सारा चीजें है ना, क्लोरेटेड इंसेक्टिसाइड इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मॉर्क्यूरिकल कंपाउंड के लिए भी हमको क्या चाहिए ना कैल्शियम ग्लूकोनेट चाहिए. ठीक है, फिर ऑर्गेनोक्लोरिन के लिए ये ऑर्गेनोफॉस्फेट आ गया. ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट ऑर्गन को कंफ्यूज नहीं होंगे. ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट एक साइड में रखेंगे. ऑर्गेनोक्लोरिन में आ जाएगा डायजापाम. ठीक है, डायजापाम आ जाएगा ना, और एफिनेफ्रिन आ जाएगा. ठीक है, हम लोग डायजापाम को दे रहे थे फेनवालेरेट और डेल्टाम एफडी करेंगे डायजापाम के. सो ऑर्गेनोक्लोरिन में भी हम डायजापाम दे सकते हैं, डायजापाम एंड एफिनेफ्रिन. ठीक है, डायजापाम एंड एपिनेफ्रिन. सो एफडी में भी दे सकते हैं, नहीं तो ऑर्गेनोक्लोरिन में भी डायजापाम एंड एपिनेफ्रिन दे सकते हैं. ठीक है, देन बार्बिट्यूरेट्स फेमनोबार्बिटॉल इसमें आ जाएगा सिंथेटिक पायराथ्रोइड में बार्बिट्यूरेट्स. ठीक है, बारबी मूवी देखिए तो बीएचसी बारबी. ठीक है, बीएचसी बी से स्टार्ट बीएचसी, इसमें से बार्बिट्यूरेट्स, बारबी का बार्बिट्यूरेट्स. ठीक है, बारबी से बार्बिट्यूरेट बीएचसी. देन आ गया आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी. मर्क्यूरिकल कंपाउंड देखो, मर्क्यूरिकल कंपाउंड जो आ जाएगा कैल्शियम. ठीक है, कैल्शियम ग्लूकोनेट आ रहा है. ठीक है, पर जब आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी का बात आ रहा है तो इसमें डाइमर कैप्टोप्रोपेनॉल बार. ठीक है, मैं आर्सेनिक एंड एम में एक डिग्री है. ठीक है, मर्क्यूरी एंड आर्सेनिक डिग्री, तो डाइमर कैप्टोप्रोपेनॉल बैल डाइमर कैप्टोप्रोपेनॉल आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी. ओके, ऐसे ही पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा. थैंक यू.